So thank you, Sangeeta ma'am, for having me at this wonderful platform. And it is such a pleasure to be here to talk all of you. Uh, and I really owe the work which you people are doing. I am the professional who really believe and works towards the parents' empowerment. So such kind of parent support group and self-help groups are really needed in the specifically in the community of autism. So if the parents are empowered, then they can work well with their children. So I am really thankful to whole team of Autism Parents Forum, especially Pramod sir, for leading this platform and organizing such a wonderful session especially for the parents who have newly diagnosed children with autism. Right? So today we are going to talk about the educational intervention for children with ASD or any developmental disability like epileptic or cerebral palsy. So specifically, my focus would be on autism, as I am told that most of the parents are having children with autism now. So my target would be so today we are going to talk about educational intervention and specifically at the stage of early intervention. So early intervention is if we talk about the age, then it is up to 3 to 4 years when we start early intervention. So it is a very important and crucial time when we start any intervention, and it depends how we early start the intervention, and that will result in the future successes and the learning. So, am I audible? Is it okay? Can I go ahead? Yes, yes, Okay, you are fine, fine. audible. So, Sir, You are audible, but you can be a bit louder. right. So So, louder, Prabna. You can. voice is cutting down, sir. Good. You know, okay, now see, only I didn't say anything else. It means he Sir, knows voice where, is not what, after clear. what. It is cutting down in between. okay. I Why? hope it is audible now. Yes, better now. Yes, yes, Fine. Prabal, you are Jump, audible. John. So, specifically, today we will Okay. discuss three aspects of early intervention. Like, first one is what is cognitive intervention and what are the perception enrichment programs which we can opt for our children. Number two is conceptual awareness, concept development. And number three, we will talk about on the development of pre-academic, like pre-reading, pre-writing, pre-math. So we will talk about. So I will go one by one, and in between, after one topic is covered, the parents are most welcome to ask their questions. So we will be happy to respond. So first of all, I want to just inform like what is the educational intervention, and this is the area which is most neglected. I think. When we talk about early intervention, we just feel that only speech therapy and occupational therapy, biomedical or any kind of medical intervention is just enough for early intervention. We somehow neglect educational therapies, or we can say we did not take support of special education, which I feel in this is the situation where in later on the child face or experiences difficulty in academic areas. Like when we talk about we our ultimate goal is schooling. So when we think, we always think about does our child would be able to attend the mainstream school? Is he will be able to attend the school as per their peer groups? So when we talk about the schooling, then early intervention and education intervention plays a very important role. So if we do not start the early intervention in terms of special education or in terms of cognitive enrichment, then later on the child has faces difficulties in many cases, and the failure of schooling. Like if I talk about the current research, then almost 60 to 70%, even it is more than that. Parents are the children who are on a spectrum experience difficulty in schooling, and that the reason of that problems is
specifically that we don't start the intervention at the early stage. So this is what, and when we are starting any education intervention, we should think, we should always search for evidence-based practice. Now I see there are so many therapies, there are so many so-called propaganda in the field of autism, especially. They give you treatment, they treat the autism within 3 months, they treat the autism within 6 months. There are camel milk therapies. I does not want to point anything, but it is the reality. There are so many things which people talk about in terms of treating autism. So one thing that is very clear, I just want to make it clear: there is no kind of treatment which is evidence, which is established by the scientific in terms that autism can be treated. Yeah, it can be managed, it can be improved. And the parents who says that, okay, my child is out of spectrum. So it is also different term. I don't believe this. Once the child is on the spectrum, he can be out of the spectrum. It can be improved. So this is a big debate that we can have, but I will not go ahead in this area. So I will directly come to my topic. So what is the education intervention? Educational intervention is the supports provided by the special educator. So what some people feel that special education is not required at this stage of early intervention. Suppose that for a 2 year child who cannot sit, who cannot talk, who has not developed their language, he could not sit for a required time and he could not learn the academics. So it is not about only academics. The special educator can help. The special educator can guide the parents in many areas. And in fact, the special educator is overall coordinator of all the programs which is going through with the child. So if the child is taking speech, if the child is taking occupational therapy, he is on biomedical interventions and any kind of other alternative interventions. So special educator just imply all these learnings. We just coordinate with all the things and apply in their teaching. So now I am going to talk what is the education intervention which we can start at the early stage. So one is very important that at the early stage, as per the theories of learning, we start learning, and if we specifically go in the theory of Piaget, which has established these are scientific and these are the learning stages. So the cognitive enrichment, or we can say the perceptual enrichment, is very important. So initially, when the child starts exploring their environment, like he starts giving you eye contact, he starts responding to instructions, sounds. So at this stage, we have to facilitate the learning of the child. So how can we facilitate? So there is a protocol of therapy, which is called, some people call it cognitive training, which some people call it perceptual training. So I'm not talking about the perceptual training in terms of occupational therapy or psychological intervention. I'm talking about their implications in the learning or in the education. So like it is known that we learn from our senses. So perceptual training or cognitive training is about how do we explore, how do we perceive the information from the environment through our senses. Like when we see the things, when we see our surroundings, when we see any situation, how do we perceive the things from that? How do we learn? What we gain from these surroundings? So this is called perceptual training, or we can say the learning. So learning happens like this. So at this stage, at the early stage, we can start perceptual training, which perceptual training mainly is training about the building of memory, building of visual skills, building of auditory skills, early language. So these are the some skills which we can start teaching to our child, right? So at this stage, like now question is how we can train. So like at the early stage when we are teaching the visual skills, so we use the highly attractive objects. So suppose that the child is newly diagnosed and he does not, most of the parents complain that he does not respond to the sounds, he does not respond to the visuals. So how can we facilitate that?
So we can use lots of attractive materials, attractive light toys which gives light. There is audio also. So when you place that object or that toy towards the child, he gives you attention. So once he gives you attention, you can initiate the conversation. You can say hi to the child. You can start with the training to respond their name. So early stages are like give the eye contact to follow simple bunny stack instructions to respond their name. So if we suppose that name the child, like suppose that if their child is Arush, so we can say Arush. So we have to see, does he respond to your sound or not? So if he is not responding, it doesn't mean that he is not listening. Maybe there is a issue with the expression. Now he doesn't know now what to react. Someone is asking my name, and in many cases they doesn't recognize their name. That Arush is my name, suppose that. So we can start the intervention in that area. So in the visual memory skills, like in so we start with the initially if we talk about if we go in sequence order, we start with the tracking activities. So you just place some objects, some visual toys in front of the child. Okay, and then you just move slowly in different directions and make sure that child is following these skills, like child is following the object. So in this activity and in this activity, the child will focus on tracking. So he will see eye contact. Some people say this is also happens in the occupational therapy activities. So it's a combined effort. All professionals works together to help the child. Okay. So once this is activity is done, now we can teach them the classification skills, visual classifications. So when we start like giving some different toys and we ask the child to classify, like give me car. So there is a recognition also involved. We will talk about later on next we will talk about how to build the conceptual skills. That's a different topic. So but once the child, you can just keep on sharing, keep on talking to the child, like this is car, give me car. So the child gives you, there you just praise the child. And the most important key which you have all parents to keep in mind, that you have to reward, you have to reinforce every positive response from the child. Like suppose that if he just looks at you when you are calling his or her name, then you should reward the child. So once any behavior, just shape through the rewards. So if you reward appropriately, then the child will try to do the same activity next time. So like in the same way, we can teach the visual classification skills, visual association skills, auditory skills, like simple to produce the simple sounds. Like once the child, if you feel that the child is able to produce the sound, you can start the imitations. You can start the imitations of only vocal sound. Then you can start the imitation of the words. Then simple phrases, so that you can carry on, right? So in this perceptual training, we have certain skills like tracking, visual associations, classifications like visual and auditory classifications on. Okay, and it involves motor perception also. So in the motor perception, we teach the child to respond their body, like to the body awareness. Occupational therapists work on this area particularly in detail. So we can teach the child just motor coordinations, motor imitations, like simple gross motor imitations, just clap, give me high five, give me high 10, and ask the child to pick any objects from the floor, just target hitting, to put the balls in the basket, put the balls in the bucket. So we can teach skills like this. And now these are the skills. Basically, parents feel that these are the skills who are in which the training is done by the occupational therapist or speech therapist. But educator is also plays a very important role. Like in suppose that in this area, we can introduce the numbers and alphabets in the life of children. So once the child, and it is not like that if the child is not able to identify the basic household objects and basic pictures, then he will not be identify numbers and alphabets. It is not like that. We start with the common household objects which are familiar to the child, and then we introduce numbers, alphabets, shapes, colors, all these basic concepts.
So we can start these concepts, right? So at this stage, we just facilitate the child's learning. We try to we try to make the child response fruitful and in a meaningful way. So this really helps. Perceptual training program really helps children in acquiring the learning skill, basic learning skill. So I can say these are the basic skills for the learning. Like we are teaching the child to use their sense of uh, auditory, sense of visual sense. We are teaching the child how to learn from the tactiles. So in this way, we can start our learning. So like when we are teaching simple activities to the child, like one activity is to pick the objects from the floor. So we can start pre math concepts in this area. Like we can ask the child, like, give me the big ring, give me the big ball, give me the small ball. So we are starting this concept from the beginning. So once the child knows that this is the big, he has the concepts of big and small, then it can apply with the other things, the other educational things, right? So this is the one aspect which we can start with the child, right? So this is a very huge topic. I think we can do hours of training in this. So it is very difficult to cover this topic in just 15 and 20 minutes. So and we have planned with the promoter that we will having the next other webinars, specifically to pointing out a specific skill. We will talk about this in detail. How this, like how the visual skills helps achieving an academic skill. I give you just one example. If we are teaching the child to recognize the alphabets, then visual skills like visual association, visual closure skills, these are very important skills, right? If we ask the child to start reading sound symbol association, simple like F for apple, ball. So we are starting very early stage in the early stage like phonemic training. So how the phonemic training is related to the auditory and visual skills, that is very important. Like initially hota kya hai na, we just keep on training the child, we keep on teaching the child like apple, ball, and we just try that child should react on your instructions, and we do not work on the basics. If the child is not able to identify the sounds, if he cannot discriminate the sounds, like if you give him two sounds, आप उसके सामने दो sounds रख रहे हैं, like one is simple ringing bell and one is mobile phone sound, and then once you make the child to expose these sounds, then ask the child, like suppose that if the child is not verbal, he cannot tell you that this is the sound of bell, this is the sound of phone, then you can place the object in front of him. Suppose that you just ring the sound, you just ring the phone, then you ask, what is this sound? So then the child, if even if the child just look at the phone, it means this is the positive sign. He feels that this sound is coming from the phone. So these are the skills how we can go ahead and we can train our child in these skills. And these are the skills directly involved with our academic skills. When we talk about reading, writing, mostly when we talk to parents, most of the parents complain the writing is the skill which is very difficult for this child and he takes the very least interest in this activity. So I must tell you, writing is not a difficult task. Writing is very easy if we go step by step. Like suppose that if we are not working on motor skills, if we are not working on coordination skills, then it gets difficult. And how we start? What are the, there is a hierarchy of teaching. Like there is no hard and fast rule also. We cannot say, then you can go ahead. Yeah, but there are some prerequisite skills. So if we work on prerequisite skills, then it is very easy to develop the specific skills. Like we are talking about writing, reading, everything is very easy. If we just, it is like, if the problem is not diagnosed, then how can we provide the treatment? It is the same way. हमने बच्चे की जो मेन एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उस पर पहले काम नहीं किया और डायरेक्ट उसको राइटिंग और रीडिंग सिखा रहे हैं, देन इट इज रियली डिफिकल्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट द इंटरवेंशन इन द एरिया which is very much required at the early stage. So even I have I have given the therapies, education therapies to the child who is just 6 months old, who is just 9 or 10
months old. So there is no time like we will start the education, we will start taking the help of a special educator after the 3 years, once he is settled down, once he is verbal. It is not like that. We have to start, we have to give the importance of educational intervention also at the early stage. Right? So, Sangeeta ma'am, I think we can take a few questions. Then we will start how do we develop concepts and conceptual awareness. Okay, Praval. Hello. So parents, we are opening for parents questionnaire. So one by one, if you have any doubts till now, you can go ahead and ask your questions. Sangeeta ma'am, can you hear me, please? Yes. Do any parent have any doubt? Yes. Go ahead. सर मैं अमरीश बोल रहा हूँ. Any parents who want to ask any question, they can unmute themselves and ask. सर मैं अमरीश बोल रहा हूँ. मेरे लड़के के साथ सर Okay, मैम, Amresh, you can go ahead. मेरा बेटा 5.5 साल का है और Your mic is not unmuted. Please unmute. I could not hear you. सर राइट नाउ कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी सर? Please unmute. Please unmute yourself. सर मेरा लड़का 5.5 साल का है और वो राइटिंग में Yes, Amresh, I can hear you. Sorry, sir, I cannot hear you. You can put your questions in chat box also. ओके थैंक यू सर. Praval sir, am I audible to you? Praval sir, am I audible? Hello. Sangeeta ma'am, can you hear me? Maybe my daughter is 3-year-old, and what are the activities and skills required to be taught at this age also, like to exercise to have good discipline? Yes, right. So when we talk about how can we teach the child to hold a pencil? Okay, so this is a prerequisite skill for the writing. Before starting writing, the child must have a pencil grip. So there are so many activities specifically to hold the pencil. Like initially, you just check that their tip-to-tip prehension is there or not. So you have to see that wo apne fingers ko. Some people are saying that I should use the Hindi, so I will use the mixed language now. Sorry. So we can use lots of activity which involves your hand. हैंड की बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है. लाइक बच्चे को आप, और उसमें भी हैंड में भी हमारा टारगेट क्या है, पहले हमें देखिए कोई भी ग्रिप है, सबसे पहले स्फेरिकल ग्रास्प आता है. जैसे कुछ हम बॉल को होल्ड कर रहे हैं, इस टाइप से कोई भी चीज पूरा बॉल को होल्ड कर रहा है, बच्चा बॉल को होल्ड कर पा रहा है कि नहीं, उसकी हैंड में स्ट्रेंथ है कि नहीं है. OTs आर द एक्सपर्ट इन दिस एरिया, बट डेफिनेटली वी आल्सो डू. तो स्ट्रेंथ हैंड में कितनी है, उसकी जो ग्रिप है वो फिंगर्स को यूज कर पा रहा है बच्चा कि नहीं कर पा रहा है. तो ये सारी चीजें आपको पहले चेक करनी है. एंड देन स्टार्ट टीचिंग द पेंसिल ग्राफ, जिसको हम पेंसिल ग्राफ बोलते हैं, जिसको ट्राइपॉड ग्राफ होता है. एंड स्ट्रेंथिंग ऑल्सो, हैंड में कितनी ग्रिप है उस पर भी हमें साथ साथ काम करना है. इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, जैसे आप कॉइन्स को पिगी बैंक में डालने के लिए बोल सकते हैं, उसमें भी आप बच्चे को बोलिए यूज ओनली 3 fingers like thumb, index finger and middle finger that you can use. तो आप पिगी बैंक में कॉइन्स डलवाइए. क्लोथ्स की हमारे घर में सारे, you can use the resources which are easily available at home. So you can use the clothes clips. आप वो बच्चे को बोलिए कि clothes clips निकाल के आप बच्चा उसमें कहीं भी आप कपड़े को या कार्डबोर्ड ले लीजिए, कार्डबोर्ड में लगाने के लिए. डफ वर्क बहुत सारा करिए, क्ले की एक्टिविटीज खूब सारी करिए. क्ले को ब्रेक डाउन करके छोटी छोटी बॉल्स, जिसमें थंब और फिंगर का यूज हो, छोटी छोटी बॉल बनवाइए. एंड बहुत ज्यादा बच्चे को मैं कहूँगा फोर्स मत करिए. इनिशियली आप, होता क्या है ना, हम बहुत जल्दी बच्चे को ना फोर्सफुली पेंसिल पकड़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. आजकल मार्केट में भी बहुत सारे पहले क्रेयॉन्स अवेलेबल हैं जो ट्राइपॉड ग्लास के होते हैं, वो बच्चों को होल्ड करना इजी है, तो वो बहुत है. आजकल बहुत सारे मार्केट में पेंसिल ग्रिपर्स भी आने लगे हैं, जिसमें फिंगर्स वगैरह फिक्स हो जाती हैं. और अगर वो भी नहीं है तो बहुत इजी होता है, जिसमें आप
सिंपल जो घर में हमारी रबड़ हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली फीमेल्स यूज करते हैं अपने हेयर्स वगैरह लगाने के, वो रबड़ भी इवन आप पेंसिल के साथ उसकी फिंगर पे लगा सकते हैं, सो दैट उसकी जो हैंड्स है वो इजीली मूवमेंट ना हो। तो इस टाइप से बहुत सारी स्किल्स है जिसके थ्रू सबसे ज्यादा फोकस ये रखिए कि हैंड की एक्टिविटीज बहुत सारा कराइए। थंब पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग, पेपर टीयरिंग, पेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, राइट। सो आई कैन टेक few more questions. Okay, so some parents asking that the child is using mixed language, English and Hindi, but how to manage two languages at a different age. Okay, so initially I would suggest, as you are telling, नीलेश कस्तूरी साहब कह रहे हैं कि उनका बच्चे को वो 2 लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, एट द एज ऑफ 6 years. So it depends on the level of child. Initially I would suggest, बहुत ज्यादा में स्पेसिफिक नहीं होना है कि हिंदी यूज करना है, इंग्लिश यूज करना है, यूज द लैंग्वेज विच वी टॉक इन आवर फैमिली. लाइक इफ वी यूज द मिक्स लैंग्वेज, जनरली आजकल हम लोग मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप उसी में बात करिए. स्पेसिफिकली प्रॉपर इंग्लिश में मत जाइए, प्रॉपर हिंदी में मत जाइए. जो हमारी कहते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग की जो लैंग्वेज है, आप जिस जगह रहते हैं वहां पर आप कौन सी लैंग्वेज ज्यादा प्रेफर यूज करें, उस लैंग्वेज में आप बात करिए, वो बहुत हेल्प करेगा. लैंग्वेज एक इशू नहीं है, बच्चा जब लर्न करना सीख जाएगा, बच्चा की एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो वो 2 लैंग्वेज क्या 3 लैंग्वेज भी सीख लेगा, वो इशू नहीं आएगा. तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट वो लैंग्वेज यूज करिए जो बच्चे के लिए घर में यूज की जाती है, जो कहीं ना कहीं जिसमें व्यवहारिक लैंग्वेज बोलते हैं, व्यवहारिक भाषा का यूज करिए जो आपके आसपास में होनी चाहिए. ओके, एंड अमरीश अमर जी पूछ रहे हैं कि उनका बच्चा है जो अल्फाबेट्स लिख सकता है बट हेल्प के साथ, और राइटिंग के पैटर्न्स भी हैं, बट अभी इंडिपेंडेंट नहीं लिख रहा है. हाँ, तो उसमें भी यही है, इसमें भी यही चीज है कि जब इंडिपेंडेंट लेवल की स्टेज, जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि प्री राइटिंग उसकी है, अगर वो सिंपल स्पेलिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सिंपल कर्व, शेप्स को लाइक सर्कल, ट्राइंगल, अगर ये बना पाता है तो डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए. बट इंडिपेंडेंट राइटिंग में बहुत जरूरी है कि हम जो हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, सपोज दैट अभी आप राइटिंग में जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, दैट प्रॉम्प्ट हाउ डू वी फेड आउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक सपोज दैट वी फील कि अभी हम उसको फिजिकल पूरा हैंड पकड़ के राइटिंग करवा रहे हैं, और वी फील कि हमें 1 वीक में ही हम वो पूरा प्रॉम्प्ट हटा के और हम सोचे कि वो इंडिपेंडेंट राइटिंग में आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. That is a stage. There are some stages. We have to do this in the step by step. Like we have to follow this step by step. हमें धीरे धीरे करके प्रॉम्प्ट करना है. जैसे सपोज हम बच्चे का पूरा हाथ पकड़ रहे हैं, हम उसके थोड़ा सा बस प्रॉम्प्ट दे सकते हैं. कुछ बच्चे बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, जब तक उनके हाथ को टच नहीं करोगे तो नहीं करेंगे. बहुत ज्यादा होता है ऐसा. तो ऐसे केसेस में हमें प्रॉम्प्ट्स को फेड आउट करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो धीरे धीरे से फेड आउट करें एंड मेक श्योर अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं लिख रहा है तो आप ये बात भी जरूर ध्यान से देखिए कि क्या उसकी सच में वो अल्फाबेट नंबर्स लिख पा रहा है या प्रॉम्प्ट से लिख पा रहा है. अगर सच में बच्चा अभी अल्फाबेट और नंबर्स लिखने में ही स्ट्रगल कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट लिख ले, दैट वुड बी डिफिकल्ट. तो आप जनरली बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट राइटिंग पे पहले फोकस मत करिए, इंडिपेंडेंट राइटिंग कॉपिंग पे फोकस करिए. तो राइटिंग वाला पार्ट जो है मैं बहुत आगे एक नया एक नेक्स्ट जो अगली बार हम वेबिनार करेंगे उसमें स्पेसिफिकली रीडिंग और राइटिंग ही 2 चीज होंगी. हाफ एन आवर में हम रीडिंग कवर करेंगे, हाफ एन आवर में राइटिंग कवर करेंगे. सो इन दैट वी कैन एड्रेस योर क्वेश्चन. Excuse me, sir. Prabal sir. नेहा गुप्ता मैम पूछ रहे हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग 4 ईयर के बच्चे की कैसे करनी है. तो हम इस वाले टॉपिक में बिल्कुल इसी चीज पर बात कर रहे हैं कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बच्चे की डेवलप करनी है. तो इसमें हमें वही करना है कि बहुत छोटे पहले हमें हाउस होल्ड जो चीजें हैं उनको यूज करना है. ठीक है, और हमें इंस्ट्रक्शंस को अपना बहुत क्लियर रखना है, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. जैसे सपोज दैट इनिशियली अंडरस्टैंडिंग के लिए आप स्टेप बाय स्टेप काम करिए. सबसे पहले उसके आई कांटेक्ट पे काम करिए, वो आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है. आई कांटेक्ट के लिए मैंने कुछ एक्टिविटीज जो आपको बताई दैट यू कैन यूज. देन यू कैन स्टार्ट विद सिंपल इंस्ट्रक्शंस, वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन, जस्ट फ्रेजेस. जैसे आपने सामने बॉल रखा और आप उसे बोल रहे हो, बस आपने 2-3 ऑब्जेक्ट्स टेबल पर रख लिए. देन यू आस्क सपोज दैट द चाइल्ड्स नेम इज, कोई भी तो बच्चे का नाम ले लेते हैं, मारूस या जो भी है. तो आपने बिल्कुल टेबल बच्चे की विजन के सामने आई लाइन में आपने बच्चे का रख दिया. देन यू आस्क ओके, केवल दे दो कमांड एक फॉलो करवाना है, ओनली दे दो. आप आरुष से बोल रहे हो या इंग्लिश में अगर आप यूज कर रहे हो तो गिव बोल सकते हैं. तो आप बोल सकते हो आरुष गिव मी, और आप ऑब्जेक्ट को इनिशियली अगर बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है तो पॉइंट कर सकते हो.
और अगर बच्चे की आइडेंटिफिकेशन है देन यू कैन नेम द ऑब्जेक्ट। लाइक सपोज दैट अगर बॉल को नहीं पहचानता तो यू कैन से ओके आरुष गिव मी दिस, पॉइंट द ऑब्जेक्ट देन आस्क। इफ यू रिकॉग्नाइज देन यू कैन डायरेक्टली से आरुष बॉल दे दो, ओके आरुष कार दे दो, आरुष पेन दे दो। बहुत सिंपल, एक एक स्टेप करना है। वंस ही अंडरस्टैंड दे दो कमांड फॉलो करता है। आपने ले लिया किसी चीज को कि रख दो, पुट पुट कमांड फॉलो करवा रहे, सामने बॉक्स रख दिया देन यू से, और एक ही एक्टिविटी करते रहिए। हमें बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी, हमारे बच्चों के साथ क्या है, हर बच्चा डिफरेंट वे में सीखता है, उसकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंस है, उसकी पेस डिफरेंट है। बट हाँ कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है कि हमें क्या फॉलो करना है, तो हमें यहाँ पे रिपीटेशन बहुत फॉलो करना है। जस्ट ट्रायल्स हमें बहुत देने हैं, जिसको हम डीटीडी ट्रेनिंग बोलते हैं। बार बार इस चीज को कराते रहना है, क्योंकि बच्चा तभी वो परसीव करेगा कहाँ इसका मतलब क्या है। तो सपोज दैट हमने उसको बॉक्स में बोला, देन वी कैन से, आप ऑब्जेक्ट अगर रिकॉग्निशन है तो ऑब्जेक्ट का नेम बोल सकते हैं, ओके पुट पेंसिल इन द बॉक्स। आप उसे, और स्टार्टिंग में एक बहुत चीज ध्यान रखिए, हमें बच्चे से कराने से ज्यादा है कि हम बच्चे को इंस्ट्रक्शन दें, उससे पहले वी हैव टू मिंगल विद द चाइल्ड, वी हैव टू डू द एक्टिविटी विद द चाइल्ड। हमें खुद से करना है। डेमोन्स्ट्रेशन हमारी टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई चीज सिखाने से ज्यादा फोकस करें कि बच्चा बस हमें देखे, आप उसके साथ बोल रहे हैं। ओके लेट्स, आयन कम, पिक दिस कार एंड पुट इट इन द बॉक्स। आप भी कर रहे हैं, बच्चे से भी करा रहे हैं। सेम, पुट द पेन, टेक द पेन एंड पुट इट इन द बॉक्स। तो आप बच्चे के साथ खुद एक्टिविटीज करेंगे तो बच्चा उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट भी लेगा और आगे से ज्यादा इंटरेस्ट के साथ आगे भी कंटिन्यू वो चीज करेगा। नहीं तो बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बंद कर देंगे। तो बहुत जरूरी है कि बैलेंस रखा जाए, जितना ज्यादा हो बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व हुआ जाए, और इन्वॉल्व होकर के तब बच्चों को हम उसमें टीचिंग स्टार्ट करें। तो थैंक यू सो मच। अभी हम ये क्वेश्चंस बाद में लेंगे, जिसको कोई क्वेरीज है वो चैट बॉक्स में रख सकते हैं। हमें अभी नेक्स्ट टॉपिक पे रखना है, जिसपे हम बहुत बड़ा टॉपिक है। लाइक नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो हम जिस पे बात कर रहे हैं दैट इज कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस। काफी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस, हाउ टू बिल्ड द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो बात आती है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बच्चे को सिखाने हैं। तो अगर हम अर्ली इंटरवेंशन लेवल पर बात कर रहे हैं जनरली 5 ईयर तक के बच्चे के लिए, तो उसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है वो हम डिसाइड करें। तो एक टाइम पे हमें 1-2-3 कॉन्सेप्ट से ज्यादा नहीं सिखाने, बट हाँ जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम बॉडी अवेयरनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी अवेयरनेस, जिसमें हम बच्चे को सिखाएंगे टू पॉइंट देयर बॉडी पार्ट्स, टू रिकॉग्नाइज द बॉडी पार्ट। देन वी कैन टीच लाइक सिंपल रिकॉग्निशन ऑफ हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स की रिकॉग्निशन। देन बेसिक रिकॉग्निशन ऑफ कॉमन, जिसको हम कॉमन फ्रूट्स, 1-2 फ्रूट्स ले लो जो बहुत ज्यादा कॉमनली घर में यूज होते हैं। कुछ व्हीकल्स ले लो, जैसे कार, हमारा बस बहुत ज्यादा यूज होता है। कुछ आपने 1-2 एनिमल्स ले लिए, इनकी आप रिकॉग्निशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुए। इसके साथ साथ और जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम प्री एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, तो प्री एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स में आप शेप्स ले सकते हैं। शेप्स को स्टार्ट करना हमें बहुत जरूरी है स्टार्टिंग से ही। कलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है। हमारा जो एकेडमिक्स में स्पेसिफिकली बात करें तो नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, इनको हम कैसे स्टार्ट करें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक। प्री मैथ में जैसे सिंपल मीनिंगफुल काउंटिंग है, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, लाइट और हैवी का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें एक्सपेक्टेड होते हैं कि हमारा 3 या 4 साल का बच्चा वो इन कॉन्सेप्ट्स को जानेगा। तो इन कॉन्सेप्ट को कैसे सीखना, कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को हम बच्चे के तक लेके जा सकते हैं, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर ही बहुत बात हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है, जब भी हम कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस की बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन सबसे पहली जो चीज है दैट इज मैचिंग। हमें बच्चे को मैचिंग सिखानी है सबसे पहले। किसी भी चीज की आप टारगेट ले लो कि मुझे व्हीकल से कार की मैचिंग शुरू करनी है, नंबर्स में 1 लेना है, अल्फाबेट्स में ए लेना है,
ऐसे ही आपने शेप्स में सर्कल ले लिया, जो हम सबसे पहले ऐसी चीजें ज्यादा पहले यूज करिए। और सपोज अगर आप फ्रूट ले रहे हैं तो जो फ्रूट बच्चे को पसंद है, जो जनरली बच्चा खाता भी है, उस फ्रूट को लीजिए। कोई ऐसा व्हीकल लीजिए जो बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेता है, मोस्टली बच्चे से कार बस उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो वो ले लीजिए। अगर एरोप्लेन पसंद है बच्चे को तो एरोप्लेन ले लीजिए। तो इस टाइप की चीजें हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की हमें मैचिंग करनी है। सबसे पहले मैचिंग क्या करनी है, मैचिंग की भी बहुत सारी स्टेजेस है। मैचिंग पहले हमें क्या करना है, पहले हमें रियल ऑब्जेक्ट के साथ मैचिंग करनी है। सपोज जो घर में आपके इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको पहले आप यूज करिए। लाइक यू कैन टेक एप्पल, तो इन एवरी होम देयर इज एप्पल, सब लोग के पास एप्पल, सब लोग खाते हैं मोस्टली। तो आप एप्पल ले लिया, तो जनरली एप्पल को ही आप रियल ऑब्जेक्ट्स को मैचिंग सिखाइए। आपने 2 एप्पल ले लिए और पास में एक एप्पल रखा है, आप उसको मैचिंग कराइए, एप्पल टू एप्पल, रियल ऑब्जेक्ट, रियल पिक्चर्स, रियल जो हमारे चीजें हैं उनकी आप मैचिंग कराइए। देन एक बार रियल मैचिंग बच्चा स्टार्ट करता है, देन यू कैन स्टार्ट पिक्चर मैचिंग। फिर आप ऑब्जेक्ट और पिक्चर, और उससे पिक्चर मैचिंग से भी ऑब्जेक्ट मैचिंग ले सकते हैं। जैसे कार, एक बाइक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आप आजकल काफी प्लेफुल एक्टिविटीज आती हैं आजकल। एप्पल का भी ऑब्जेक्ट, एप्पल का आने लगे हैं, हर चीज का, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हीकल, सब कुछ आजकल आते हैं मार्केट में, वो ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ आप सिखा सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैचिंग आप कर रहे हैं। फिर आप कार्ड की मैचिंग पर लेके आ सकते हैं। आप पिक्चर, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, वो मैचिंग कर सकते हैं। एक बार जब वो मैचिंग हो जाएगी, देन हम उसको नोटबुक पे मैचिंग लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें बहुत पहले से ही प्लान करना है कि हमें नोटबुक बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी है, पहले अर्ली स्टेज पर ही। अब होता क्या है कि जब हम 4 साल में बच्चे को नोटबुक देना स्टार्ट करते हैं, देन ऑलरेडी बच्चे के साथ जो गैप है वो बड़ा हो जाता है, तो उस गैप को फिल करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अर्ली स्टेज से हमें प्लान करना है कि हमें वो जो भी एक्टिविटीज बच्चा सीख रहा है उसको हम टेबल टॉप एक्टिविटीज पर भी लेके आए, हम उसको एकेडमिक से भी लिंक करें। तो मैचिंग की हम बात कर रहे हैं। तो मैचिंग में, अब मैचिंग तो ये हो गया, मैंने डिफरेंट डिफरेंट मैचिंग्स आपको बता दिए। अब मैचिंग की भी स्टेजेस है। लाइक सबसे पहले आप वन चीज के साथ मैचिंग करा रहे हैं, देयर इज, जिसको हम बोलते हैं एररलेस टीचिंग। कोई एरर की वहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं है। सपोज और दिस इज द सेम विद एवरी स्टेप, लाइक व्हेन यू आर टीचिंग मैचिंग with real pictures, with the objects and flashcards, stages are same. So suppose that I talk about with the pictures, flashcards. तो आपने suppose that Apple का हमें बच्चे को मैचिंग सिखाना है, तो बच्चे के सामने जब आप मैचिंग के लिए दे रहे हो तो कोई दूसरा कार्ड है ही नहीं, ओनली सामने भी एप्पल का ही कार्ड है, मतलब एप्पल टू एप्पल का मैचिंग है, देयर इज नो अदर कार्ड्स। तो यहाँ पर कोई मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है कि बच्चा रॉन्ग मैच करेगा। बच्चा सामने जहां भी रखेगा वो सही मैच करेगा। तो जब बच्चा इस स्टेज पे आपने मैचिंग दिया और सामने ओनली एप्पल है, एप्पल से एप्पल मैच किया, एंड इसमें हमें बच्चे को रेनफोर्स करना है। इस स्टेज पर बच्चे को बहुत सारा मोटिवेट करना है, अरे वाह आपने तो एप्पल से एप्पल मैच कर दिया, दैट्स ग्रेट, वाह नेक्स्ट। ऐसे ही आपने डिफरेंट, अब आप क्या कोशिश करिए, अब एप्पल के साथ ही आप मैंगो मत स्टार्ट कर दीजिए। एक टाइम पर एक कैटेगरी से एक ही चीज लीजिए इनिशियली, बाद में आप 2 से 3 ले सकते हैं, बट इनिशियली आप केवल एक ही चीज लीजिए, एक ही पिक्चर लीजिए, उससे आप स्टार्ट करिए। आप दूसरी कैटेगरी ले सकते हैं। ओके, आपने एप्पल कर लिया, नाउ यू कैन चेक फ्रॉम द नंबर में आपने 1 ले लिया, सेम स्टेज 1 के साथ 1 को मैच करो, वाह वेरी गुड, आपने कर दिया। बच्चे को डायरेक्टली वहां पर प्लेस करते जा रहे हैं। तो जब बच्चा पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग में 1 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि ओनली 1 कार्ड है जो सेम कार्ड है, आप सेम कार्ड के साथ मैचिंग करा रहे हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप, जब आपको लगे बच्चा इसमें रेस्पॉन्ड करने लग गया है, बच्चा देखता भी है, उसकी आई मूवमेंट भी, बहुत सारी स्किल है जो आपको ऑब्जर्व करनी है उस टाइम। आपको लगता है कि हाँ बच्चा देख रहा है, नीचे देखता है वो कार्ड की तरफ, उसको देख के मैच कर रहा है। वंस यू फील दिस इज एस्टेब्लिश्ड, देन यू कैन इंट्रोड्यूस अनदर कार्ड। ध्यान रखिए जो दूसरा कार्ड आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो सेम कैटेगरी में ना हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। सपोज आप एप्पल की मैचिंग करा रहे हैं तो एप्पल और मैंगो के कार्ड दोनों सामने नहीं होने चाहिए। एक कार्ड आप एप्पल का रखो, दूसरा कार्ड आप बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी का रखो। जैसे आपने एक एनिमल ले लिया, डॉग ले लिया। ध्यान, इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है जब हम ये कर रहे हैं। ध्यान रखिए कि एप्पल, सपोज एप्पल रेड कलर का है, तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट आपने कार्ड प्लेस किया है सपोज दैट डॉग का, वो कहीं उसमें रेड कलर तो नहीं आ रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। बच्चा बहुत जल्दी एसोसिएशन करना शुरू कर देता है। वो हो सकता है इनिशियली बच्चा एप्पल को पहचान ही नहीं रहा है, मैचिंग वो सिर्फ कलर को, अब उसकी जो माइंड में विजुअल इमेज बन रही है वो ओनली कलर को देख के बन रही है, तो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है रिकॉग्निशन।
तो ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इवन आप कार्ड की जगह कोई ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं इनिशियल स्टेज में, तो आई विल सजेस्ट सपोज एक आपने एप्पल का कार्ड रखा है, दूसरा आपने वहां पर कोई ऑब्जेक्ट जैसे आजकल टॉय एनिमल्स आते हैं वो आपने रख दिया। देन यू आस्क द चाइल्ड, एंड इंस्ट्रक्शन बहुत इजी रखना है, सिंपल रखना है, लाइक मैच एप्पल। आप देखो बच्चा एप्पल की तरफ देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, और इफ यू फील क्या बिल्कुल ये ध्यान नहीं दे रहा है, बच्चा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उसमें, देन यू स्टार्ट टैपिंग एप्पल। जो आपने टेबल पे एप्पल रखा है उसको आप धीरे से टैप करेंगे, बच्चे का अटेंशन आ जाएगा। यहाँ पर ये ऑडिटरी स्किल हो गई कि वो ऑडिटरी साउंड्स को एसोसिएट कर रहा है, टैपिंग को एसोसिएट कर रहा है कि मतलब मुझे कार्ड यहाँ पे रखना है। तो वंस द चाइल्ड पुट कार्ड ऑन एप्पल, देन यू जस्ट प्रेस वाओ वेरी गुड, सो दिस इज एप्पल। आप बोल सकते हो एप्पल, इनिशियली आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैचिंग हमें इस टाइप से रखनी है। इसी में धीरे धीरे हमें वन चॉइस, दिस इज कॉल्ड टू चॉइस में मैचिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप 3 कार्ड्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, 4 कार्ड्स कर दीजिए, फिर मल्टीपल कार्ड्स को सामने टेबल पर रख दीजिए। सपोज आपने 4-5 कार्ड होती है, एक एप्पल है, एक कार है, डॉग है, ठीक है, एक आपका सर्कल का शेप है। देन यू आस्क द चाइल्ड मैच एप्पल। तो उसमें देखना है कि मल्टीपल चॉइस में भी बच्चा मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट ये हमें एक ही पिक्चर के साथ सारे स्टेप एक साथ नहीं करने हैं, एक पिक्चर के साथ एक ही स्टेप लेके जाना है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सपोज अगर हम 2 चॉइस मैचिंग कर रहे हैं इन द 2 चॉइस सिचुएशन, देन यू टेक 2-3 टारगेट्स, लाइक सपोज दैट आपने फ्रूट से एक एप्पल ले लिया, व्हीकल से आपने कार ले लिया, आपने नंबर्स में 1 ले लिया, अल्फाबेट्स में A ले लिया, राइट। उनके साथ आप पहले आप 2 चॉइस में करिए with your goals, then 3, then 4, so you can go like this, okay। तो एंड इसमें श्योर है अगर आप मैचिंग में जो से मैंने आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप मैचिंग जा रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं इन सब चीजों का जो मैंने ध्यान दिया है कि सिमिलरिटीज नहीं होनी चाहिए मैचिंग के टाइम पे, क्योंकि मैचिंग मींस एसोसिएशन जहां भी आएगा वो बच्चा पिक करेगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें रखनी है सो दैट देयर इज नो एसोसिएशंस, क्लियर क्लासिफिकेशंस बच्चे के माइंड में आ पाए। एंड यहाँ पर आपको सेम द टाइम परसेप्चुअल ट्रेनिंग भी लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर वो चलती रहेगी तो ये लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है बहुत जल्दी होगा। तो अब मैचिंग हो गया, मैचिंग के बाद सॉर्टिंग आप स्टार्ट करिए। कुछ लोग सॉर्टिंग पहले कर देते हैं, बट जनरली मैचिंग के बाद सॉर्टिंग पहले करना चाहिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत आइडिया रहता है बच्चे को हमें किस चीज को सॉर्ट करना है। सपोज अगर आपने एक बॉक्स लिया, उसमें सॉर्टिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे आप सॉर्टिंग में पहले ऑब्जेक्ट की सॉर्टिंग कर सकते हैं, जैसे एक तरफ आपने कुछ कॉइन्स डाल दिए, दूसरी तरफ आपने कुछ मार्बल्स डाल दिए, तो आप उनको सॉर्ट करा रहे हैं, ठीक है। पहले आप केवल 2 चीजों को सॉर्ट कराइए, जैसे मैंने मैचिंग में बोला ऐसे इसमें भी स्टेज रखिए। पहले आप केवल एक ही चीज रखिए कि आप इसको उठा के बॉक्स में डालिए, कुछ और दूसरी चीज है ही नहीं, ओनली सपोज दैट मार्बल्स ही है, कॉइन्स ही है, एंड यू आस्किंग द चाइल्ड ओके पिक द कॉइन एंड पुट इन द बॉक्स। आप डायरेक्ट एक बाउंड से बॉक्स में डलवा रहे हैं। देन आपने क्या किया, उसके सामने 2 बॉक्स रख दिए और एक बाउंड में आपने कॉइन्स और कुछ एक ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सपोज दैट बॉटल कैप्स है, आपने सारी बॉटल कैप्स डाल दी। देन यू आर आस्किंग द चाइल्ड टू सॉर्ट, लाइक सपोज दैट इन दिस बॉक्स। और पहले बच्चे के साथ खुद करिए, जो मैं डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ कि बच्चे के साथ खुद इन्वॉल्व होना है, ये रेगुलरली चलते रहना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी बच्चे से कराने से पहले ध्यान रखिए कि आप लोग खुद उसके साथ करिए। सो वंस यू स्टार्ट दिस, लाइक सपोज दैट ओके नाउ यू पिक, आपने भी कॉइन पिक किया, बच्चे से भी कॉइन पिक करा रहे हैं, पुट इन दिस बॉक्स। क्लियरली बच्चे के सामने विजुअल होना चाहिए कि हाँ इस बॉक्स में ट्रांसपेरेंट बॉक्स होना चाहिए, इसमें हम कॉइन्स डाल रहे हैं। Then, okay, now put marbles or bottle caps. Now pick these caps and put in the different box. So you do this activity. तो sorting में भी आप पहले 2 चीजों का sorting करा रहे हैं, then you can introduce 2, 3, 4. So same way you can go with the multiple pictures, multiple objects, multiple cards. आप सारी चीजें ले सकते हैं। Like suppose that एक ही साथ आपने 3-4 चीजें डाल दी, then आप 3-4 चीजों को sort करवा रहे हैं एक साथ। आपने numbers डाल दिए, but once the child is recognizing numbers, आपने 1 और 2 के कार्ड्स मिक्स करके डाल दिए। देन यू आर आस्किंग ओके 1 वाले कार्ड्स आप इधर रखो, कोई बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, 1 वाले कार्ड आप इधर रखो और 2 वाले कार्ड्स आप इधर रखो। तो इस टाइप की एक्टिविटी हम सॉर्टिंग में यूज कर सकते हैं। और बिलीव मी, अगर हम ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, हमें कहीं पर भी कॉन्सेप्चुअल टीचिंग में डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप घर पे भी ये चीजें करिए, जहाँ पर पॉसिबल है आप स्पेशल एजुकेटर का सपोर्ट लीजिए, वो लोग हेल्प करेंगे। इवन स्पीच थेरेपिस्ट भी लोग काफी स्पीच थेरेपिस्ट रिकॉग्निशन पे भी काम करते हैं, और ये चीजें बहुत जरूरी है। रिकॉग्निशन अब स्पीच में सपोज आप ये मान के चलिए कि अगर आप स्पीच और एजुकेशन आप सोचते हैं, अब स्पीच अगर बच्चे को रिकॉग्निशन नहीं है, अगर बच्चे को मैचिंग नहीं है, सॉर्टिंग नहीं है, तो स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा, पहले उसको मैचिंग सॉर्टिंग वो सिखाना पड़ेगा।
अगर उसको रिकॉग्निशन नहीं है, सपोज हम एप्पल को एप्पल बुलवा रहे हैं और बच्चे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, तो मीनिंगलेस बुलवाने का क्या फायदा है? ठीक है, इफ यू ट्राई टू make the child verbal in meaningful way, then the child must have basic recognitions. तो recognitions अगर आप एजुकेटर के साथ मिलकर कर रहे हैं तो बहुत क्लियर हो सकता है कि ठीक है, एजुकेटर आपकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, स्पीच वाला जो आपका थेरेपिस्ट है वो प्रॉपरली स्पीच थेरेपिस्ट आपके बच्चे की वोकल्स पे काम कर रहे हैं, लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। प्रोफेशनल्स को भी अगर हम कहते हैं कि अपनी चीजें अगर हम डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट ओटी में हम कवर कर लेंगे, सब ग्रिप के ऊपर हम ओटी में काम कर लेंगे, बट राइटिंग की जो प्री रिक्वेस्ट है उनको डेवलप करने में हम एजुकेटर का सपोर्ट देंगे, तो बहुत इजी हो जाता है, बच्चा बड़ा आराम से चीजें करने लग जाता है। जब सारी चीजें का बर्डन एक ही थेरेपिस्ट के पास होता है तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम में वो चीजें मैनेज करना डिफिकल्ट आता है। ओके, सो हमारी 2 स्टेज हो गई, मैचिंग बच्चा एक बार सीख गया, देन सॉर्टिंग सीख गया, देन आइडेंटिफिकेशन आता है। फिर आप बच्चे को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे। सपोज दैट आपने 2 3 उसमें भी सेम आप मेथड यूज करेंगे। पहले ओनली वन चॉइस, सपोज दैट आपने सामने एप्पल रखा, देन यू आस्क द चाइल्ड गिव मी एप्पल। बच्चा और कोई दूसरा कार्ड ही नहीं है, आपको एप्पल ही पिक करके देगा। दिस इज एररलेस टीचिंग। आप बच्चे को प्रेस करोगे, वाओ वेरी गुड, बच्चा मोटिवेट होगा, राइट। सो सेम आप दूसरी चीजों के साथ कर सकते हैं, नंबर्स के साथ, अल्फाबेट के साथ, ऐसे ही लाइक गिव मी वन। एक बार वन का आइडेंटिफिकेशन आ गया है, देन आप नंबर्स 2 3, आप सपोज दैट आप उस बच्चे को मैचिंग सॉर्टिंग आ गया है 5 तक का, ठीक है, तो देन आप स्टार्ट कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में आप सेम वही मेथड सारे यूज करेंगे, वन चॉइस, 2 चॉइस, मल्टीपल चॉइस। सो इन वन चॉइस यू जस्ट आस्क द चाइल्ड गिव मी वन, बच्चा आइडेंटिफाई करना सीख रहा है, आपको वन देगा। और ये मत सोचिए कि हमें इसी की स्टिक रहना है बहुत, कि नहीं बच्चा जब तक नहीं देगा तब तक हम छोड़ेंगे, नहीं। आप 1-2 बार कोशिश करिए, बच्चा देता ठीक है, नहीं तो आप उस चीज को खुद बोलिए, ओके दिस इज वन, इन वन। आप बच्चे को हैंड पकड़ के खुद से वो एक्टिविटीज करवाइए, एंड यू विल फील कि हाँ बच्चा भी अब धीरे धीरे इनिशिएट करने लगा है। ओके, सो वंस आइडेंटिफिकेशन इज डन, देन यू गो फॉर द नेमिंग। देन यू कैन स्टार्ट नेमिंग द पिक्चर्स और नेमिंग द ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज एप्पल, दिस इज कार, दिस इज वन, दिस इज टू। तो नेमिंग हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेज है, ठीक है। एक बार जब बच्चा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया और आपको लग रहा है साथ साथ बच्चे की स्पीच भी चल रही है, बच्चा थोड़ा सा वोकल्स भी आ गए हैं, लैंग्वेज आना शुरू हो गया है, देन आप बच्चे के साथ नेमिंग पे काम कर सकते हैं कि नेम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स। तो सपोज दैट इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक आप अगर स्क्रैप बुक बना लेते हैं, एक आपने स्क्रैप बुक बना लिया और स्क्रैप बुक बना के आप बहुत सारी पिक्चर्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट आपने उसमें पेस्ट कर लिए, एंड देन यू आस्क टू पॉइंट द पिक्चर्स और जस्ट नेमिंग। आप सारी चीजें उसमें कर सकते हैं, लाइक अगर पॉइंट करने के ऑलरेडी बच्चा पॉइंटिंग जानता है तो आप उसको पिक्चर सामने स्क्रैप बुक में पॉइंट करवा सकते हैं, लाइक पॉइंट एप्पल, पॉइंट बनाना, पॉइंट मैंगो, पॉइंट कार। एक बार पॉइंट कर रहा है, फिर आप नेमिंग पे फोकस करिए, उसकी फिंगर को जस्ट पॉइंट करके आप बोलिए पहले, लाइक एप्पल, कार, बनाना, और जस्ट मेक श्योर द चाइल्ड इज listening to you, he is just looking at the scrapbook। आप उसे फोर्स मत करिए कि इसको आप नेमिंग करो, आप बोलो। आप एक बार जब इसकी ये प्रैक्टिस जब चलती रहेगी, आप देखेंगे एक दिन बच्चा खुद ही स्क्रैपबुक निकालेगा, खुद वो बोलना शुरू कर देगा। मोस्टली दिस हैपेंस विद आवर चिल्ड्रन। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, रेगुलर इंटरवेंशन की जरूरत है, लगातार हमें काम। ये जो एजुकेशन इंटरवेंशन है, इट इज वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस। थेरेपी हो सकता है 5 ईयर के बाद जो बच्चे डेवलप कर रहे हैं, आपको लगे कि हाँ ठीक है, आपको बच्चा हमारे स्पीच आ गया, 6 ईयर्स के बाद थेरेपी जब डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, स्पीच ओटी के इश्यूज हमारे एडमिस हो गए। बट एजुकेशन जहाँ बच्चे के साथ थोड़ी लर्निंग लिमिटेशंस है, काफी लंबे टाइम तक चलता है। इनिशियली आप कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में कर रहे हैं, फिर आप बच्चे के एकेडमिक्स में हेल्प करने के लिए एजुकेटर का सपोर्ट ले सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, लंबे टाइम तक आपके साथ रह सकता है। तो एक बार जब नेमिंग हो गया, देन यू कैन से नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कॉन्सेप्चुअल अवेयरनेस में अगर हम रिकॉल करें तो ये बेसिक 3-4 चीजें हैं। मैचिंग, सबसे पहले आप कुछ पॉइंट मैचिंग के साथ ही जब पॉइंटिंग स्टार्ट करते हैं तो मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग। So these are the 4 stages for the conceptual any kind of concept। आप इसमें चाहे नंबर सिखा रहे हैं, चाहे शेप सिखा रहे हैं, चाहे आप बच्चे को वर्ड्स की रीडिंग सिखा रहे हैं, इवन जब हम साइड वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो साइड वर्ड्स में भी मेथड यही होता है, सिंपल। क्योंकि साइड वर्ड भी बच्चा एक तरह से उसका विजुअल एसोसिएशन माइंड में रहता है, तो बच्चे को सारी स्टेजेस पे ले जाके अलग अलग कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज
प्री एकेडमिक स्किल्स, जिसमें हम प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, इनिशियली हम केवल राइटिंग की बात नहीं करें, ओनली प्री रीडिंग, प्री राइटिंग स्किल्स क्या है उनके ऊपर बात करेंगे, प्री मैथ कॉन्सेप्ट्स क्या है। उससे पहले मैं कुछ अगर क्वेश्चंस, कोई पेरेंट्स हैं जो अगर आपको अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वी कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन। Praval sir? Praval sir, am I audible to you? There is one question also, my son doesn't look down at a table for long. Any tips to increase attention? या बहुत सारी स्किल्स हैं अटेंशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली जो मैं आपको बोल रहा था ना कि परसेप्शन एनरिचमेंट, कॉग्निटिव ट्रेनिंग, जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, उसमें ये सारी स्किल्स आते हैं। अटेंशन स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट, सिटिंग बिहेवियर, रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्ड टू नॉइज, उसमें सारी चीजें। तो अटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे टेबल की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत छोटे छोटे टारगेट लीजिए। आप टारगेट लीजिए कि हमें जस्ट 1 or 2 मिनट्स के लिए, हार्डली इवन 1 or 2 मिनट्स भी नहीं, बट आप एक्टिविटी बेस्ड रखिए कि सपोज दैट हम केवल एक एक्टिविटी करेंगे टेबल पे बैठ के, देन यू आर फ्री। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, एक रिंग रख दिया और आपको 3 रिंग्स हैं जो आपको पुट इन करनी है। बस आप क्या करिए, बच्चे को मेक द चाइल्ड टू सिट ऑन द प्रॉपर टेबल टॉप एक्टिविटी, मेक हिम टू सिट ऑन द चेयर, देन आस्क द चाइल्ड टू पुट दैट रिंग्स। ओके, so once he finished with the 3 rings, he put the 3 rings, आप उसे खुद ही फ्री कर दो, now you are free। तो आपने जस्ट क्या कुछ फ्यू सेकंड्स का टेंशन लिया बच्चे का। तो इनिशियली इससे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर आपने 2 एक्टिविटीज ले ली, ओके ठीक है, हम केवल ये 3 फ्लैश कार्ड्स हैं, ये 3 पिक्चर्स हैं, इनको बस टेबल पे मैच करके आएंगे, देन यू आर फ्री। तो आपने 2 एक्टिविटीज कर दिया। ऐसे ही आप बहुत छोटी छोटी 5 मिनट्स को बिठा के रखिए, 10 मिनट्स को, टाइम को ग्रेजुअली बढ़ाइए। एक साथ मत कोशिश करिए कि ये बच्चा 10 मिनट्स प्रॉपर बैठेगा, 15 मिनट बैठेगा। धीरे धीरे अगर आप गोल वाइज सेलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी वाइज सेलेक्ट करिए। आप ये मत सोचिए मुझे 15 मिनट बिठाना है, नहीं, आप एक्टिविटी सेलेक्ट करिए, मुझे ये 2 एक्टिविटीज करानी है। अब ये 2 एक्टिविटी चाहिए 5 मिनट में कर देता है, चाहे 10 मिनट लेता है, बट हमें ये 2 एक्टिविटीज फिनिश करानी है। तो इफ यू थिंक इन दिस वे, देन डेफिनेटली अटेंशन स्किल विल। एंड अटेंशन के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये तो आपका ओनली मेरे जो टेबल टॉप एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड होता है, बट अटेंशन के लिए बहुत सारी चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं। बच्चे के अगर सेंसरीज हैं तो वो हमें सेटल करने पड़ेंगे। इफ यू फील कि बच्चे का अभी जो ऑडिटरी स्टिमुलेशन है, विजुअल स्टिमुलेशन है, उन पर प्रॉपर फोकस नहीं है, तो हमें उन चीजों पर काम करना पड़ेगा, राइट। चलिए, थैंक यू। Now we are talking about our last topic, that is pre-academic skills. So what are pre-academic skills? Pre-academic skills majorly are pre-reading, if we broadly tell, like pre-reading, pre-writing, and pre-math concepts. So what is pre-reading concept? What can we teach in pre-reading? So in this pre-reading skill, basically we start with the recognition of numbers, alphabet. Like reading is not only just English reading or just alphabet reading, it involves all, like number reading, alphabet reading, okay, picture reading. So initially we start with the picture reading, just naming is kind of reading, right? अगर बच्चा नेम कर रहा है, इट मींस वो पिक्चर रीडिंग कर रहा है। सबसे पहले हमने पिक्चर रीडिंग को फोकस करना स्टार्ट कर दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम सपोज अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को टारगेट करते हैं कि हम नंबर्स और अल्फाबेट को बच्चा नेमिंग करे, वो टारगेट कर रहे हैं। और अब स्पेसिफिकली जब हम रीडिंग की कर रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर हमारी रीडिंग लैंग्वेज रीडिंग इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेज है दैट इज फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस क्या है, आजकल वैसे एक जनरल among the parents, it is established that our children are very good visual learners, so they learn well with the visuals, or sight words they easily recognize, and it is some cases it is like that, really they learn with the visuals. But हमें phonemic awareness, if we really feel that we have to go for successful schooling, हमें phonemic awareness आजकल करना ही पड़ेगा। तो मोस्टली स्कूल्स में phonological awareness ही आजकल phonemic जो जिसको phonetic approach बोलते हैं, that they use. तो it start with the phonemic awareness. Phonemic awareness क्या है, ये आपकी प्री रीडिंग एबिलिटी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट्स में ध्यान रखिए, बहुत बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना है। आप टारगेट कर लीजिए कि जो हमारे अपर केस अल्फाबेट्स हैं, जिनको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, इनको हम एबीसी की तरह पढ़ेंगे। लाइक सपोज हम कैपिटल बी लिखा रहे हैं, अपर केस, दैट इज बी, दैट इज सी, डी, उनको हम एबीसीडी करके पढ़ेंगे, जो जनरली हम पहले यूज करते थे। बट we will introduce lowercase alphabet with the sounds only. Suppose जब हम उसको lowercase a सिखा रहे हैं,
देन वी स्टार्ट विद द साउंड। हम उसको कभी ए बोलेंगे ही नहीं, हम उसको कभी बी बोलेंगे ही नहीं। लेटर ऑन बच्चा खुद एसोसिएट कर लेगा, बट इनिशियली हमें कंफ्यूज नहीं करना है। हमें बी को, स्मॉल बी को बी नहीं बोलना, हमें ब ही बोलना है, लाइक इट इज ब, सी इट इज क। इसमें हमें क्या करना है, सिंबल्स के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट करना है, लाइक एप्पल। आजकल बहुत सारे जॉली फोनिक्स वाली एक्टिविटीज आ गई हैं, राइम्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक एप्पल, एरोप्लेन, एक्स, लाइक बॉल, बैलून। तो जितना ज्यादा हो सकता है एक आप स्क्रैप बुक बना लीजिए, साउंड्स को पिक्चर के साथ एसोसिएट करिए, दैट इज कॉल्ड फोनेमिक अवेयरनेस। लाइक सपोज अगर वो बच्चा एप्पल देखता है तो उसका उसे साउंड पता, वो एसोसिएट कर ले, दिस इज एप्पल, ए मींस एप्पल, ओके, ए मींस एरोप्लेन। तो वो साउंड को इनिशिएट, यानी ये फोनेमिक अवेयरनेस हमारी लैंग्वेज बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है। आई एम टेलिंग यू, हम कितना भी फोकस करते रहे कि बच्चे को हमें यहाँ लैंग्वेज प्रॉपर 3 वर्ड्स बोलना सिखाना है, और बच्चे की फोनेमिक अवेयरनेस पे हमने काम नहीं किया है, बच्चे के नेमिंग पे हमने काम नहीं किया है, इट गेट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। तो अगर फोनेमिक अवेयरनेस बच्चे के साथ है तो बहुत इजी हो जाएगा बच्चे के लिए। तो हमें फोनेमिक अवेयरनेस, अगर हम प्री रीडिंग की बात करें तो ओनली साउंड सिंबल एसोसिएशंस पर काम करना है। साउंड सिंबल एसोसिएशंस मींस alphabet, like suppose that A, that is A, then pictures, A, apple, aeroplane. ऐसे ही like suppose that mango, monkey, monster, बहुत सारी चीजें हमें एक अल्फाबेट के साथ टारगेट करना है कि आप एक स्क्रैप बुक बनाइए, पिक्चर के बीच में आप सैंड पेपर को कट करके, इवन आप उसको बच्चे को रिकॉग्निशन में भी हेल्प करेगा, लाइक सैंड पेपर से ए को कट कर लीजिए, बी को ब को कट कर लीजिए, बीच में आप वो सैंड पेपर से ब को पेस्ट कर दीजिए, उसके चारों तरफ आप पिक्चर्स पेस्ट कर दीजिए, लाइक ब, व्हेन यू आर पेस्टिंग ब, देन पुट द पिक्चर बैलून, बस, बॉल, बैट, बैग, तो दीज आर द पिक्चर्स। सो आप जस्ट उसे पॉइंटिंग करा सकते हैं, लाइक पॉइंट ब, बॉल, बैलून, बस, ये सही सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। So this is pre-reading, and now we talk about pre-writing skills. What are the pre-writing skills? Pre-writing skills में क्या करते हैं, हमें बहुत अर्ली स्टेज पर ही बच्चे के, जैसे मैंने बताया, मोटर परसेप्शंस पे काम करना शुरू कर देना है। When we talk about motor perception, मोटर में क्या होता है कि वहां पर इमिटेशन हो गया। और अगर हम डायरेक्टली राइटिंग वाली एबिलिटी पे आ जाए तो राइटिंग जब से, जिससे मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, राइटिंग में काम करने से पहले बहुत ज्यादा हैंड फंक्शन पे काम करना है। बच्चे की जितने ज्यादा हैंड फंक्शन को आप कर सकते हैं, डिफरेंट क्ले के साथ, टफ वर्क, वाटर कलर एक्टिविटीज, वो आप खूब सारा बच्चे के साथ करिए। तो एक बार जब आप वो बच्चे के साथ करना शुरू कर देंगे, देन आपको हेल्प करेगा राइटिंग बिल्डिंग में। तो और राइटिंग में भी कुछ स्टेजेस हैं। आजकल प्री राइटिंग में हम लोग एक प्रॉपर पैटर्न है जिसको फॉलो करते हैं। जैसे पहले प्री राइटिंग में हम सिंपल स्टैंडिंग लाइंस को पहले डेवलप करना शुरू करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंट, देन कर्व्स, और नंबर्स और अल्फाबेट्स भी हम वही वाले पहले स्टार्ट करते हैं, जिसमें लाइक सपोज दैट इनिशियली हमें सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन वाले नंबर से स्टार्ट करने हैं, लाइक 1, देन वी कैन जॉइन स्लीपिंग लाइन लाइक 7, तो 1 के बाद हम 7। जब बच्चा, और राइटिंग में भी, प्री राइटिंग में भी स्टेज सेम वही है, पहले आप बच्चे के साथ खूब सारा स्क्रिबलिंग, फ्री हैंड स्क्रिबलिंग करवा रहे हैं। एक बार बच्चा ट्रेसिंग करने लग जाएगा, ट्रेसिंग करने के बाद आप उसे डॉट जॉइनिंग प्रॉपर करा रहे हैं, डॉट जॉइनिंग के बाद कॉपिंग करा रहे हैं, सिंपल कॉपिंग, लाइक सिंपल स्टैंडिंग लाइन को कॉपी करना, स्लीपिंग लाइन को कॉपी करना, सिंपल शिप्स को कॉपी करना। देन स्टेप आता है इंडिपेंडेंट लिखना। इंडिपेंडेंट में सबसे पहले, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम लोग प्री जो कॉन्सेप्ट है, प्री राइटिंग जो पैटर्न्स हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं, जैसे 1, 7, 9, देन 2, 4, ये नंबर्स पहले लिखवाएंगे। अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा L, T, H, I, ये सारे नंबर्स पहले, अल्फाबेट्स पहले आएंगे। देन वी कैन स्टार्ट विद C, जो कर्व्स वाले लेटर्स हैं, C, U, O, लाइक। तो इन प्री राइटिंग वी गो like this, okay? So this is the pre-writing pattern, and काफी डिटेल और बहुत सारी डिटेल है, but we have a limitation of time. It's already 1 hour 6 o'clock, so we have to wind up now. One is last in pre-academic, last is pre-math concepts. So in pre-math concepts हमें क्या करना है, बच्चे के नंबर रिकॉग्निशन वगैरह उन पर फोकस करना है। मीनिंगफुल काउंटिंग, जिसको हम ऑब्जेक्ट काउंटिंग भी बोलते हैं, काउंट करके प्रॉपर फ्लैश कार्ड देना, जैसे काउंट द ऑब्जेक्ट, देन आपने ओके
How many objects are there? Child just asked to count like 1, 2, 3. If the child is not able to write, then you can ask to pick the card. Like suppose these are 3, now give me 3. इस टाइप से हम उनको कार्ड्स में ले सकते हैं, राइट? तो हमें मतलब वही फैसिलिटेट करना है। अगर बच्चे का राइटिंग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम प्री मैथ कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, हम कंटेंट राइटिंग ही कराएंगे जब हम मीनिंगफुल काउंटिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मीनिंगफुल काउंटिंग आप सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ, घर की चीजों में ज्यादा ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको कोशिश करिए कि बच्चा काउंट करे। उसके बाद प्री मैथ में सिंपल कॉन्सेप्ट जैसे बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को सिखाइए। डिफरेंस बहुत ही रहे, इन्हीं एक टाइम पे एक ही सिखाना है। लाइक बिग है तो आप पहले बिग ही का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आप बिग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, लाइक बिग बॉल, बिग हाउस, बिग ट्री, बिग कार, केवल बिग की बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप स्मॉल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप दोनों में कंपेयर करना सिखा रहे हैं बच्चे को, लाइक बिग बॉल, स्मॉल बॉल, बिग कार, स्मॉल कार, बिग ट्री, स्मॉल ट्री। तो वी कैन गो लाइक दिस। प्री मैथ कॉन्सेप्ट ऐसे ही आप लॉन्ग शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, हैवी लाइट का कॉन्सेप्ट है, तो प्री मैथ में आप इन सब कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं, राइट? So I think this is what I want to convey with you all. This is actually these are the huge topic. एक एक टॉपिक पे conceptual development, प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, पूरी बहुत लंबी बात हो सकती है, बट टाइम की लिमिटेशन की वजह से ये अब मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस को हम एड्रेस करें। तो जो भी क्वेश्चंस है बेटर है आप कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। I would request Sangeeta ma'am, please allow the people to unmute their mics so that they can ask the questions. Praval sir, are you able to hear us? And Sangeeta ma'am, you can also ask if there is some question in the chat box which you have created, then you can ask. Please, Sangeeta ma'am. Praval sir, you are not able to hear us. Please check your mic. Can you hear me, please? You are not able to hear us, Praval sir. Please check your mic. चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है मीन भाई, मैं प्रेफर करूंगा कुछ लोग क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली अपना ऑडियो अनम्यूट करके। कुछ ने पूछा है, एक पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हम अपनी स्क्रैप बुक में दोनों अल्फाबेट्स को पेस्ट कर सकते हैं क्या, कैपिटल और स्मॉल? हाँ, अलग अलग स्क्रैप बुक, दोनों को मिक्स मत करिए। अगर आप कॉन्सेप्ट टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो एक स्क्रैप बुक आप कैपिटल लेटर्स का भी बना सकते हैं, बट अगर आप साउंड्स को टारगेट कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि हमारा गोल क्या है। अगर आप साउंड को ट्रैक कर रहे हैं तो आप साउंड्स में स्पेसिफिकली ध्यान रखिए कि ओनली लोअर केस अल्फाबेट्स ही वहां पर होने चाहिए, ठीक है? तो स्क्रैप बुक जब आप बना रहे हैं तो मेक अ सेपरेट स्क्रैप बुक फॉर द रिकॉग्निशन एंड फॉर सपोज द साउंड सिंबल एसोसिएशन फॉर प्री रीडिंग। Hello, sir. In chat box there is Hello, sir. Hello. Hello. Ma'am, please type your query in the chat box. Praval sir is not able to yes, hear. Sangeeta ma'am, Okay. am I audible now? Yes, you are audible, sir. Am I audible to you? Sir, am I audible to you? I use a different headphone. I think. Hello. Hello, sir. Am I audible to you now? Yes. Now I can hear you. Very great. Thanks. From the beginning, I'm starting to communicate this to you, but no problem. So, parents, please unmute yourself and you can ask your questions. Yes. Hello, sir. Yes, ma'am. हाँ सर, मेरा बेटा 5.5 साल का है और वो अभी तक बहुत कम वर्ड बोलता था। उसको ABCD का बोलना पसंद था, काउंटिंग, तो वो 10 तक काउंटिंग ABCD पूरी बोल देता है। पर अभी मैंने उसे शब्द बुलाने की कोशिश की है तो वो जीभ पलटने वाले जो शब्द है वो नहीं बोल पा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या उसको इम्प्रूव करना चाहिए कि वो डरता है बोलने से। जैसे मम्मी तो बा शब्द निकलता, माँ की जगह बा शब्द निकलता है, तो इसके लिए ओके। हाँ, देखिए इसमें और सर बस राइटिंग उसको सारे
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सभी आते हैं उसको, लेकिन थोड़ा सा ग्रिपिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सपोर्टिंग जो आते हैं वो लिया है, पर फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, तो उसको फाइन मोटर स्किल के लिए और क्या करना चाहिए? ओके सो आपने बेसिकली 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक तो आपने लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा है, एंड दूसरा आपको जो अल्फाबेट्स वगैरह बच्चे को रिकॉग्निशन है उससे रिलेटेड है, तीसरा आप Yes, पूछ रहे हैं कि फाइन मोटर क्या है। यस, तो जो आप लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि कुछ साउंड्स वो नहीं बोल पा रहा है, जिसमें जी पलट के जैसे म है, र है, उस टाइप में, इसमें एक्चुअली क्या है ना, इसमें आपको स्पेशल एजुकेटर्स की बजाय आपको स्पीच थेरेपिस्ट ज्यादा प्रॉपर हेल्प कर सकते हैं। एक बार जो भी आपके स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनसे आप जरूर बात करिए, बट हम लोग अपनी जितनी अवेयरनेस से आपको बता सकते हैं वो ये है कि एक्चुअली इसमें ना प्रॉपर टंग प्लेसिंग की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हम टंग प्लेसमेंट बच्चों को स्पेसिफिकली सिखाते हैं कि कैसे कौन से वाले साउंड के लिए कहाँ पर टंग होना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस हैं जो स्पीच थेरेपिस्ट जनरली करते हैं, राइट। जैसे बच्चे को जनरली जो स्टार्ट किया जाता है वाले साउंड्स के साथ लाइक ब प टाइप के साउंड्स पहले स्टार्ट करते हैं, फिर वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप स्पीच थेरेपिस्ट अपना एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जिसके थ्रू वो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने जो भी स्पीच थेरेपिस्ट जहाँ पर आप थेरेपीज ले रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प करेंगे। फाइन मोटर के लिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप घर में बहुत सारी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं हैंड फंक्शन की, जैसे मैंने बताया क्ले को आप खूब सारा यूज करिए, वाटर प्ले इसके साथ करिए। जैसे आपने स्पंज ले लिया, एक किसी बाउल में बॉटल ले लिया, उसमें कलरफुल बच्चा स्पार्कल वगैरह डाल दीजिए, बच्चा इंटरेस्ट लेगा, और आप वो स्पंज में वाटर सोक करके उसको प्रेस करवाइए। जैसे मैंने क्लोथ्स की क्लिप बताई, क्लोथ्स क्लिप को लगाना बंद करना वो आप यूज कर सकते हैं। कॉइन्स को, जो पिगी बैंक होता है उसमें कॉइन्स डालिए। छोटी छोटी चीजें, पेस्टिंग, पेपर टीयरिंग करके पेस्टिंग करवाइए, जिससे उसका थंब प्रेशर वगैरह वो इम्प्रूव होंगे। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो घर पे आप कर सकते हैं। टूथपिक्स वगैरह थर्माकोल में लगवाना, वो चीजें कर सकते हैं आप, टूथपिक्स को लगा सकते हैं थर्माकोल में, ठीक है। तो इस टाइप में बहुत सारी चीजें, बॉटल कैप्स वगैरह हैं वो खोलना वगैरह है, वो चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो आप इजीली बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्प लीजिए अपने थेरेपिस्ट की, वो आपको और बेटर गाइड कर पाएंगे। यस, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? हेलो प्रबल सर। यस हेलो सर, मेरा बच्चा अल्फाबेट पहचानता है, लाइक ही 3.9 ईयर ओल्ड, ओके लेकिन उसको प्रॉब्लम ये है कि जैसे ए फॉर एप्पल है तो वो कोई भी बुक देखेगा, जैसे उसने एक बाय हार्ट कर लिया, ए प्रॉपर ओके पहचानेगा, एप्पल भी पहचानता है, लेकिन अगर एप्पल नहीं रहेगा तो वो पहचान तो नहीं पाता, लेकिन कुछ भी लाइक एरोप्लेन रहेगा तो बोलेगा एप्पल। हैन, हैट, हैट नहीं हैन, उसको पता चल गया तो हैन ही है, हैट। ये कैसे सिखाऊं सर कि उसे ए फॉर एप्पल भी पता चले, ए फॉर एरोप्लेन भी, yes और yes हैच। this is जी what I was just explaining in my presentation। मैं बोल रहा था कि एक ही साउंड को हमें बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एसोसिएट करना सिखाना है हमें। ए का ओके मतलब ये नहीं कि एप्पल ही है, बी का मतलब ये नहीं बॉल ही है। इसीलिए मैंने बोला कि आप एक स्क्रैप बुक बनाइए, स्क्रैप बुक में बीच में आपने सपोज दैट ए साउंड को पेस्ट कर दिया, और ए के साउंड के जितने भी पिक्चर्स होते हैं मिनिमम 5 to 7 पिक्चर्स आप स्क्रैप बुक के कॉर्नर्स पे पेस्ट कर दीजिए। देन यू कैन आस्क द चाइल्ड, आप उसे बोलिए लाइक ए को पहले पॉइंट करे, देन पिक्चर, लाइक ए एप्पल, एप्पल का पिक्चर पॉइंट किया एप्पल, ए एरोप्लेन, ए एंट। इस टाइप से बच्चे के साथ स्क्रैप बुक जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत हेल्प करेगा। मतलब एक ही साउंड के सर, डिफरेंट लेकिन डिफरेंट पिक्चर्स हमें वो सर जैसे ए फॉर, तो भी यही काम करूं स्क्रैप बुक में, ए लिख के उसके साइड साइड में काफी सारे पिक्चर्स पेस्ट करूं? आप हाँ समझ रहे बिल्कुल मेरी बिल्कुल बात? हेल्प करेगा। और केवल ए के जी साथ ही नहीं, जी ये हर साउंड के साथ करना है, बी के साथ, ब के साथ, क के साथ, सारे साउंड्स के एटलीस्ट आपको टारगेट करने हैं कि 5 पिक्चर्स वो बताए। और इवन आपको रिवर्स करना है, आपको पूछना है ओके व्हाट सेज एप्पल, ए, व्हाट सेज मैंगो, म। रिवर्स ट्रेनिंग देनी है बच्चे को। आप पूरा पिक्चर का नाम बोल रहे हो, बच्चा उसका साउंड बोलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी ओके कर सकते हैं, जैसे सिंपल कहते हैं व्हाट सेज क सेज कैट, रिवर्स करिए, कैट सेज क, कैट का साउंड क्या है क। इवन आप इसको जब आप बच्चे को अगर अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन प्रॉपर है तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरफ आप पिक्चर्स पेस्ट कर दीजिए और दूसरी तरफ अल्फाबेट्स को पेस्ट करवाइए। लाइक एप्पल के सामने ए को पेस्ट करिए,
बॉल के सामने ब को पेस्ट करिए, मैंगो के सामने म को पेस्ट करिए, तो इसमें फाइन मोटर भी इन्वॉल्व है, बच्चा प्रॉपर नोटबुक पे वो काम कर रहा है, टेबल टॉप एक्टिविटीज, अटेंशन, बहुत सारी चीजें आप एक साथ टारगेट करते हैं, राइट मैम? ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन प्लीज। हेलो यस मैम। सर, मेरा बेटा अभी 3.2 ईयर का है। आपने अभी जो क्वेश्चन का आंसर दिया उसमें उनके बेटे को रिकॉग्निशन था, पर मेरे बेटे को रिकॉग्निशन नहीं है अभी अल्फाबेट्स और नंबर्स वगैरह का। तो मुझे भी क्या स्टार्टिंग स्क्रैप बुक मल्टीपल वर्ड्स के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी? हाँ देखिए, अगर आपका अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, अगर अभी रिकॉग्निशन नहीं है, तो अभी स्क्रैप बुक से भी पहले आपको, जो मैंने आपको अभी हमने कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की जो बात करी थी, जो मैं फ्लैश कार्ड के थ्रू मैचिंग, सॉर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन बता रहा था, उस चीज पे आप ज्यादा टारगेट करिए। आप अभी स्क्रैप बुक जनरली ले सकते हैं कि बच्चे को जब भी फ्री टाइम है, आप बहुत सारी पिक्चर्स आपने स्क्रैप बुक में आप क्या कर सकते हैं, कॉमन पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट विद योर फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले आपने फैमिली मेंबर्स की पिक्चर, क्योंकि बहुत सारा हमारे साथ ये भी होता है कि बच्चा अभी तक अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं पहचानता है, पिक्चर्स अपने पापा की नहीं पहचानता, ठीक है, अपने दादा की पिक्चर नहीं पहचानता, तो स्टार्ट विद द फैमिली मेंबर्स। उसके बाद आप कॉमन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग की चीजें हैं, जैसे उसकी पर्सनल बॉटल है, पर्सनल उसका बैग है, पर्सनल साइकिल है, उन सब की पिक्चर्स कलेक्ट करके वो सारी स्क्रैप बुक में लगाइए और उसको फ्री टाइम में वो स्क्रैप बुक पलटने दीजिए, देखने दीजिए, बहुत सारी स्किल बच्चा करेगा। लेकिन अगर रिकॉग्निशन नहीं है तो आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना है फ्लैश कार्ड्स के साथ बच्चे की मैचिंग, सॉर्टिंग को ज्यादा काम करें। जो मैंने मैचिंग की जो स्टेजेस बताई थी उनको आप ज्यादा फॉलो करिए। मैचिंग में जो आपने बताया था कि पर्टिकुलर चीज को लेकर ही कराना है। हाँ, कुछ टारगेट सेट कर लीजिए, जैसे फ्रूट्स में मुझे सपोज दैट मैंगो लेना है, मुझे व्हीकल्स में बस को सिखाना है, नंबर्स में ए लेना है, सॉरी नंबर्स में 1 लेना है, अल्फाबेट्स में ए लेना है, तो कुछ टारगेट लीजिए और उसको जो मैंने स्टेजेस बताई थी, पहले सिंगल नो चॉइस वाली सिचुएशन, कोई चॉइस नहीं है, बच्चा केवल एक ही चॉइस है, 1 चॉइस ओनली, देन 2 चॉइस, फिर मल्टीपल सिचुएशंस में, वो सारी स्टेजेस को आप फॉलो करिए और डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखेंगे। एक कैटेगरी से एक ही चीज रखनी है। या, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Any other संगीता parents? मैम, आप देख लीजिए कितने क्वेश्चंस लेने हैं एज पर योर कन्वीनियंस, राइट? Yes, sir, I will. So, any parents, do you want to ask question? You can unmute yourself. Do anyone have any queries? Okay, sir. I think no one have a query now, so we can go through the chat box. Okay. So anyone who have further queries, they can reach us. They can contact me. Contact details they can take from this forum. My email ID is there, so you can take. My contact number is also available. So further queries, you can contact me directly. We have a center and a special school called Marksri in Noida, so you can reach us. Thank you so much. Yeah, thanks a lot. Thanks a lot, sir. Actually, the session was very, very useful. It is more practical and theory as well. So it is not that. Thank you. It's really very much pleasure to be here on this platform.